Assalamualaikum. Hopefully I'm audible. Saranis, can you confirm? जी सर यू आर ऑडिबल। Okay, today is the last session, last of this 4 weeks training session, and today we will do a complete mock session, part one, part two, part three of speaking, and we will do from previous IELTS practice sessions like IELTS 19, academic speaking test 1, and then for another participant, we will continue with another this type of any specific mock session. Okay, let me check. कि आप में से कौन सबसे पहले पार्टिसिपेट करना चाहेगा मॉक सेशन के लिए? प्लीज रेज योर हैंड ताकि फिर हम स्टार्ट करें। सर अनीस आपसे ही शुरू कर लें फिर। एक्चुअली मैंने प्रीवियस जो है ना वो सेशंस लिए हैं, मैंने सिर्फ स्पीकिंग का लिया था। तो स्पीकिंग ही करेंगे हम। स्पीकिंग ही करनी है हमने तो बस, और कुछ करना भी नहीं आई तो। बस ठीक है, उत्तर हाँ। बेटे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज मोहम्मद हारून एंड आई विल बी द एग्जामिनर आगे डायल किया फॉर हुआ देखना क्या स्टेटस है, क्या है। today's speaking mock speaking session. We will start from part 1, then we move to part 2, a cue card session part, and then after that we do follow up questions. ओके। Could you please tell me your complete name? माई सेल्फ अनीस अहमद। सर, सबसे पहले तो मैं एक कंफर्म कर दूं, आपको पता भी होगा, आप शायद कि माई सेल्फ नहीं हम कहते। ओके हाँ, या हम स्टार्ट करते हैं माई नेम इज से। ठीक है, माई नेम इज अनीस अहमद। Okay, what should I call you? How may I address you? यू मे कॉल मी सिंपली अनीस। Okay, thank you. May I see your ID, please? यस ऑफ कोर्स। Okay, could you please tell me where are you from? आई एम फ्रॉम पंजाब, फैसलाबाद। Okay, how often do you eat typical food from other countries? Why and why not? If we eat, then why, and if not eat, then why not? काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। How often do you eat typical food from other countries? This is the question you can see here. Often do you eat from? Okay. Recently, I have I have a tongue test. I wanted to taste albake that is not available in our country. So one of my friend who is living in Saudi Arabia, I called him. He was coming on leave from his job to his home country in Pakistan. So I said I told him to take a meal for me from there. So he take a meal with him, and I take him from the airport, and then I eat there.
Okay. How was the taste of that meal? The taste was obviously that's great because it's a brand. So I found it very interesting as I am expected not expected that this type of taste will be amazing. Okay. Next question is, have you ever tried making food from another country? Yes, I tried. I tried making Chinese noodles when I was in 10th. One of my colleagues said to me that do something crazy. So we had a chance to we decided to create a Chinese meal. So we decided to create a Chinese noodles. So we created it. We found it very amazing. We enjoyed it a lot. Okay, next question is, what food from your country would you recommend to people from other countries? Usually, I will recommend biryani, especially of Karachi. The biryani of Karachi is very popular in our country. So I will highly recommend to other countries because its taste is obviously very great. Because every time I go to Karachi, I must eat that, and I found that taste very unique and delicious. So I will highly recommend to other peoples who came from other countries. That's it. Okay. Now we will move to our second part, that is cue card, and I will present you a topic, and you have 1 minute to prepare about it. Okay. Yeah, then you will speak more than 2 minutes on it. Okay. This is your topic. Describe a law that was introduced in your country and that you thought was a very good idea. What was the law? Who introduced it? When and why it was introduced? And explain why you thought this law was such a good idea. Saranish, please start your. A law that was I found in my country is wearing helmet on the road during driving bike. So it was a great idea so that many of the accidents on the road becomes gives
Okay, I think Uh, Sarvis. am I Yeah, audible? yeah, you are audible. Okay, sorry, my mic was muted. Acha. I was talking about the law of wearing helmet on the road. We found many of the cases that accident cases on the road which strikes directly to the headache and which becomes the nervous system uh, fail to work properly. So the law created is very great, and the person who introduced this Mariam Nawaz, who introduced it, and now it is updated by Mia Mohammed Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan. So he now applied another rule of fine of 2,000 rupees for not wearing helmet on the road. As now the technology is boosting, they also started doing e-traffic challans, uh, which uh, which do some e-challan using artificial intelligence on the camera. Uh, s- so I thought it was a great idea so that when someone unfortunately had a road accident, uh, this can lead to less major increase injuries. Okay. Okay. Now we are moved to part 3, the follow-up questions. What kind of rule are common in a school? The common rule, common kind of rules. In a school, Common yes. in a school are the punctuation of time, the period sessions duration, and the duration and the quality of the education as teachers are working on their check and balance. Okay. Next question is how how important is it to have rules in a school? Not even a school. In every organization, the rules defines how the an organization will work. But school is an education institute, so the rules are according to that. So I found the importance of rules in school is have a great great importance. Okay. Our next question is what do you recommend school happen? What do you should recommend should happen if children break school rules? School should happen if children break school. They should put, I think, when someone breaks school rules, they should have a little fine. But before the fine, we should have given simply a warning. Then we should take a little punishment in sense of fine or in sense of work homework. Okay. Our next question can you suggest why many students decide to study law at university? Many of the students wanted to study law because they wanted to know about and wanted to have a protocol difference from others because writing on because they wanted to have a number plate on the number plate of advocate on their cards. What are the key personal qualities needed to be a successful lawyer? Um, to become a successful life, we should have to be honest and mm, some detective type personality so that we can even have an intelligence so that how any criminal is going on and how we can solve it.
Okay, thank you, Sir Anis. Here is our mock session end, and I have to provide some feedback to you. And one more thing, sorry for this noise on the back end of me. It's okay, no issue. Yeah, I understand at office these type of conversations are going on. Okay. Now, first, uh, I can say you have to practice more. If Obviously. if I have to provide you a band score, so I think it's between 5 to 6. Okay. Because I am not a professional or expert, but the interviews and mock sessions I listen to many. That's why I'm giving you this feedback. Okay. Otherwise, I'm not an expert. Might be you can get more than this, but according to these mock sessions which I listened from IELTS Advantage and IDP and other also from Asad Yakub's channel. So that's why I'm giving you this. But you have to work on your uh, fluency, because you can speak, but sometimes generating ideas, meanwhile you are stuck and fumble due to some hesitation what I have to speak next in after this sentence. Okay. Also, some vocabulary, lack of vocabulary issues, like for bike we don't use ride, drive, sorry, we don't use drive, we use ride for Okay. bikes. And also, uh, nervous system not fail, it's breakdown, Okay. nervous system breakdown. And then also, there is punctuation is a grammatical word, we use to word punctuality. It's a card about time related thing. Okay. Punctuality. Yes, then also I write some other words. You use a word, if a lawyer should have a curiosity, not detective mind. Okay. Yeah, these type of vocabulary you have to work on. Like if the question is about lawyer, then what type of vocabulary I can use, because detective is in other sense, like in negative sense we can use. Okay. So, but we are using in successful liar. So curiosity is a good word for a trait of personality in a lawyer. Okay. Also, there are some other grammatical mistakes that you can listen to after listening the recording. Then you can enhance your pronunciation and grammatical mistakes. You can overcome them. Okay. I will obviously listen it. Will you kindly share the resources you are using to prepare for rights? I'm using just IELTS Advantage. IELTS Ye- Advantage. Yes. एक minute. Let me note down them. Yeah. IELTS Advantage. IELTS Liz IELTS Liz. and British Council. Somewhat of IDP, not more, but these three resources I am using most. Without these resources, I am not going any other to watch any other resource. Like sometimes if uh, attractive video suddenly came across to my window, then I watch like Asad Yaqub's and other some
but most of these three main platforms from where I'm doing practice and training myself to prepare Yeah. myself to appear in the exam. Also, one more crucial platform is you can note down it. It's a YouTube channel, Paulin Colin, PAULIN हम्म. COLLEN. ठीक है. She is Colin. the author of first 3 to 4 books of IELTS 1, 2, 3. She is the author of that books. So on its channel there are only 28 videos, but these are enough to understand the writing, reading, and listening. Perfect. Yeah, it's a great resource because she also wrote down the books on IELTS, and she has enough knowledge about it, how the traps are working, how we can overcome them, how we avoid these distractions. Well, And not there are more than 20 minutes video, some of 3 minutes, some of 4 minutes, and these are just simple tips uh, we can use in our preparation and get good scores. well. For vocabulary और linking words और etc. अगर इस तरह का मटेरियल प्रिपेयर करना uh, हो तो. yes, if you are on Slack, then you can get on from pinned files. There is also a Google Drive link. You can get it from there because Yes. I uploaded the all material, and these are linking words, distractors, tips, and vocabulary. I get extract from the all 1 to 19 IELTS books. Okay. I found And it. yeah, I think it's enough for our. There are in the context, meaning, and part of speech, also some collocations, some phrasal verbs that are used in all previous IELTS practicing books. Well, I have seen. मैंने देख लिया. Yes, and also there is a 4 weeks crucial plan, and at the end of that plan you can find more than 1,000 words with the meaning, antonyms, synonyms, examples, and context of usage. And like if a word is we like same in the last question, lawyer, successful lawyer traits, you use the word detective. Then Hmm. I told you that we cannot use this word detective in personality traits of a lawyer. We use curiosity. It's also meaning of that word like investigate the thing. Detective is also investigate, and curiosity is also investigate, research. Hmm. But Well. it's curiosity is in a positive way and detective is in a negative way. So Oh, that is the context of using word. perfect. So we can use these type of words, and also on in that documents I use wrote down the context where we can use these words. Some words we use in medicine, but we cannot use in business field related topics. Perfect. Yeah, you can use just I don't recommend to remember all the words, just go through it, because Hmm. once we go through we have some words in our mind. When we read somewhere else or we see that word somewhere else,
suddenly that word's meaning come into our mind, that this is that word I learned from that documents, and I read that book, I read that on the TV. So that type of words we use, and it's crucial to just go through it. And also that the pollen colon also recommend, don't need to remember all the words, just go through high C2 level, C1 level vocabulary from Oxford academic list, and just go through them with, don't need to remember all the words. Understood. Okay, I think Sir Asfar is not coming today as well, and Sir Tehseen. अगर कोई और आपको अभी क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा इसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम पिछले 3 चीज़ों को, स्पीकिंग के अलावा हम 3 चीज़ों को कंक्लूड करें तो उसको ज़रा कंसाइजली बता देंगे मुझे। जी, लिसनिंग के लिए ना आपको थोड़ा सा, आप एक ही सोर्स यूज करें। मैं आपको जो मैं कर रहा हूँ आजकल यूज, क्योंकि उसके हम्म। बाद से ना मुझे काफी बेहतर फील हुआ है। इधर उधर पहले मैंने बहुत सा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, इधर उधर सर मारना, वो बहुत किया मैंने। ओके। बहुत से मसले मसाइल थे, तो मैंने एट द एंड जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का एक पॉडकास्ट का चैनल है, वहां पे कोई 300 प्लस ऑडियोज हैं अपलोडेड ना, हम्म। और तकरीबन कोई 15-20 मिनट, कोई 25 मिनट इस तरह हैं। वो डेली एक सुने, आपकी बहुत सी जो लिसनिंग की चीजें हैं ना वहां से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं जो कैम्ब्रिज की ये आइल्स में इन्होंने बोलना होता है। अभी काइंडली आप इसको ज़रा स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं? जी, मैं शो करवाता हूँ, 1 मिनट के लिए। bbc.com। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी बिल्कुल। 1 मिनट, ये ठहरे। ये है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ना, ओके। जैसे किधर गया, तो जैसे अभी आप देख रहे थे कि 11 मिनट की एक ऑडियो थी। ये इसको करने दे मुझे open। हाँ ये सुन लिया, ये बस 5-7 मिनट की ये होगी। इसी तरह कोई और आ जाएगी, वो कोई 5-10 मिनट की होगी। तो इस तरह आप ये जो सुनेंगे ना, तो इससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा यूट्यूब पे जो इनका चैनल है ना, वहाँ पे वो पॉडकास्ट का अलहदा प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पे ना कभी एक होते हैं होस्ट, कभी 2 होस्ट होंगे, साथ एक गेस्ट होगा, कभी एक होस्ट होगा और 2 गेस्ट होंगे। तो उससे ना ये हमारे जो पार्ट 3 और 4 वाला है ना, वो बड़ा क्लियर हो जाता है। ओके। क्योंकि मुझे ना एमसीक्यूज में काफी मसला आ रहा था, तो उसकी वजह से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है। तो एमसीक्यूज में ना पार्ट 3 में दो दो 3 या 2 लोग बोलते हैं, तो उससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही थी कि मैं एमसीक्यूज में अक्सर वर्ड जो आंसर था वो गलत कर जा रहा था। तो इससे ना हम्म। मेरी काफी वो कंफ्यूजन दूर होगी, कि मुझे समझ आनी शुरू हो गई है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना है, वो बोलते क्या है और फिर उसका आंसर कैसे वो फाइंड करना होता है। दूसरा, ओके। उसके बाद रीडिंग जो है ना, हम्म। रीडिंग और लिसनिंग में ना हम काफी अच्छे बैंड ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे
ये उनकी तरफ से दिया होता है और हम इसमें प्रैक्टिस करके अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हैं। बाकी राइटिंग भी हमने करनी है, स्पीकिंग भी हमने करनी है, उसमें अगर कम भी आ जाए तो इधर से जो ज़्यादा होंगे वो कवर कर लेंगे एवरेज को। ओके। तो रीडिंग के लिए आप क्या करें, रीडिंग को चंक्स में यूज करें। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैंने अभी एक पैराग्राफ इससे निकलवाया है, मैं पढ़ रहा था तो उसको मैंने फिर ब्रिटिश काउंसिल से मैंने उठाया था, तो मैंने कहा मुझे ये चंक्स में बना के दो। नजर आ रही स्क्रीन आपको? जी जी बिल्कुल। जी, ये देखें। अब ये जो है ना एक चंक है, फ्रेज कह हम्म। सकते हैं, ये एक चंक है। ठीक है, हम जो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हम्म। वहां से हमें चीजें क्लियर नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसी को मैं 1 मिनट अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप यहाँ तक पढ़ें, आपको कितना टाइम लगेगा? पढ़ें जरा, खुद पढ़ें। Open your eyes in sea water and it is difficult to see much more than a murky bleary green color. ठीक है, अभी ये वाले को यहाँ तक दोबारा जरा चंक्स में पढ़ें। ये जो 3-3 वर्ड है ना, इनको इकट्ठा इकट्ठा करके पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी फर्क क्या है। Open your eyes in sea water and it is difficult to see much more than a murky bleary green color. Perfect. समझ आ रही है कि जी हर जी। चंक को उन्होंने अलहदा कर दिया है। तो ये जो टेक्नीक है ना, इससे हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और हमें इससे रीडिंग में वो फायदा होगा जो वहाँ पे वो चाहिए उनको। वो क्योंकि हमें पूरी रीडिंग नहीं करनी होती, वहाँ पे हमें स्कैन एंड स्किमिंग करनी होती है। तो अगर हम इनको चंक में यूज करेंगे ना, तो हमें हम्म। एक तो उसका फ्रेज का मतलब क्लियर होता जाएगा और रीड भी हम जल्दी कर लेते हैं इस तरह। बिल्कुल। तो मैं तो ये टेक्नीक यूज कर रहा हूँ। तो चैट जीपीटी को कहता हूँ मुझे इसको चंक में बना के दो, वो मुझे बना देता है। मैं उसको फिर 2 दफा पढ़ता हूँ, मुझे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं उसके हवाले से। Well, अब ये बायोलॉजी का है, ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट था ये बायोलॉजी का था। मेरी बायोलॉजी फील्ड नहीं है, मेरी बिजनेस है, लेकिन मुझे फिर भी ये सारा इतने अच्छे से समझ आ गया। सिर्फ 2 दफा मैंने पढ़ा इसको, पूरे well. 7 जो पैसेज हैं इनके छोटे छोटे हम्म। पैराग्राफ। तो इतना मुझे हम्म। समझ आ गया कि मुझसे अगर कोई इस पे सवाल पूछेगा ना, मुझे सारा पता क्या करना है। तो इस तरह ओके। आप करें आप। तो काफी ये बेहतर टेक्निक है पढ़ने के हवाले से। और वो हम्म। यूज भी यही टेक्निक करते हैं। ये भी जो मैं आपको वो पोलिन कॉलिन का बता रहा हूँ ना, यूट्यूब का चैनल, ये उसी ने बताया था कि आप इस तरह चंक की टेक्निक यूज करें। आप सिंगल वर्ड से पढ़ेंगे तो आपके जहन से चीजें निकलती जाएंगी। चंक पढ़ेंगे तो आपके जहन में एक चंक का पूरा मतलब होगा, इन सी वाटर। हम्म। ठीक है, फिर आगे जी एंड बिल्कुल। एंड इट इज डिफिकल्ट, कि एक पूरा मतलब है इसका कि ये तो डिफिकल्ट है। एंड हम्म। सी मच मोर, और बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ना पूरा फ्रेज का मतलब आपको समझ आता जाएगा, ना कि आप पूरा एक जुमला पढ़ें फिर उसको ट्रांसलेट करें, तो उससे वो टाइम भी ज़ाया होता है और समझ भी बाद औक़ात नहीं आती। तो ये टेक्निक बहुत बेहतर है। और राइटिंग के हवाले से ना, असद यकूब के चैनल पे ना कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं जो वो तजवीज़ करता होता है कि ये यूज़ करें। उसमें क्या करना है, बस आप टेम्पलेट उठाएं और उसमें अपने क्वेश्चन को रिफ्रेज कर दें और अपने जो जुमले ऐड करने हैं वो बस जहाँ पे उसने रीज़न लिखा हुआ है, जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि अपना आंसर लिखें, वहाँ पे वो ऐड करें, तो आपको वो पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग कहाँ तक है। हम्म। क्योंकि कोई 50 to 100 वर्ड तो वो मिल जाते हैं हमें टेम्पलेट से, जो हमने यूज करने ही करने हैं। लिंकिंग वर्ड है, इन एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट, हाउएवर, मोर ओवर, फर्स्टली, सेकेंडली। ठीक है, इन कंट्रास्ट। इस तरह के जो लिंकिंग वर्ड है ना, वो जब हम यूज करते हैं तो कोई 50 से 60 वर्ड तो ये बन जाते हैं। तो वेल वेल। बाकी बाकी जो क्वेश्चन है ना, उसको रीफ्रेज करने का फायदा पता क्या है? अगर हम सेम क्वेश्चन को लिखेंगे ना, तो वो जो उनका काउंटर है ना, वर्ड काउंटर, वो उसको हटा देगा कि ये तो सेम क्वेश्चन है। जब हम इसको बिल्कुल। रीफ्रेज करेंगे ना, तो वो हमारे हम्म। वर्ड बन जाएंगे और उनको भी वो वर्ड काउंटिंग में ऐड कर देगा।
तो जब वर्ड बिल्कुल। काउंटरिंग में वो क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा, तकरीबन कोई 15-20 वर्ड वो होंगे, तो हमारे 100 वर्ड तो ये लिंकिंग वर्ड्स और इस तरह के क्वेश्चन और ये चीज़ें मिला के ये हो जाएंगे। हमें बस कुछ थोड़ी सी कुछ 10-12 यूज़ करने हैं अच्छी वोकेबलरी के वर्ड, और बाकी सिंपल वर्ड यूज़ होते हैं वो हम कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। और ये नहीं है कि हम फैसिनेटिंग वर्ड यूज़ करेंगे ही तो हमें अच्छा स्कोर मिलेगा। उन्होंने हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि ये सही यूज़ किया हुआ है कि नहीं। कल मैं एक कैम्ब्रिज का देख रहा था। कैम्ब्रिज का एक जर्नल था, वहाँ से कुछ मिले देख रहा था कि उन्होंने तकरीबन 96% वर्ड जो यूज़ किए हुए थे ना, वो A1, A2, B1 और B2 के यूज़ किए हुए थे। सिक्स सिर्फ 5 to 6% C1 और C2 के वर्ड थे पूरे पैराग्राफ में। मुझे ये A1 और B2 ये इनका पता नहीं है, ये क्या है? ये ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये ना, ये जो स्कोरिंग होती है ना लैंग्वेज की, ये वो है। क्या? ओके, कि अ, हम हाउ मच एक्सपर्ट यू आर। जी, ये कि अगर जब हम अगर बैंड 7 आता है ना तो C1 लिखा होता है, ठीक है, हम्म। आइल्स का। बैंड सही सही। 8 से अबव होगा तो ये C2 लिखा होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर 6.5 से नीचे 6.5 होगा तो B2 लिखा होगा। तो ये होते हैं। और मैं उसका देख रहा था कि कैम्ब्रिज के उन्होंने तकरीबन 94 to 95% जो वर्ड है ना वो सारे ये थे, A1, B2, A2, B1, B2 के। हम्म। हम जो भी इस टाइम सेशन ले रहे थे या ले रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हम सब B2 लेवल पे हैं। हमें C1 पे जाना है बस, इतना सा फ़र्क है। B2 पे हम सारे हैं। हमें सब को इतनी वोकैब्युलरी, इतना ग्रामर आती है कि हम B2 का आसानी से पास कर सकते हैं। समझ गया। तो ठीक है। तो उसमें ना उन्होंने सिर्फ 5 से 6% वर्ड C1 C2 के यूज़ किए हुए थे। तकरीबन कोई पेज पूरा था एक उसमें। तो उसको अगर आप एक पेज पे होते हैं तकरीबन 250 से 280 तक के वर्ड एक पेज पे। हम्म। तो ठीक है। अगर उनको हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो वो 5 से 6% कितने बनेंगे? 8-10 वर्ड बनेंगे सिर्फ। बिल्कुल। तो हमें इतने ही हर जो मेजर फील्ड है ना, टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, उसके अलावा बिजनेस है, एनवायरनमेंट है, इसके ना कुछ हमें 10-10, 12-12, 15-15 वर्ड यूज करने हैं। यानी कि अगर हम अच्छे वाले कोलोकेशन और ये वर्ड 100 to 200 भी याद कर लेना तो हमारे लिए इनफ है कि हम इनको कंटेक्स्ट के मुताबिक यूज करें बस। हम्म। ये अगर वर्ड बिजनेस रिलेटेड है तो हम उसको एनवायरनमेंट के सेंटेंस में फिट नहीं कर सकते, हम उसको बिजनेस में ही फिट करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे एक वर्ड है C1 का है एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है अकमुलेटेड सम, ठीक है। हम इसको बिजनेस वाला कोई आएगा तो हम्म उसमें तो यूज कर सकते हैं, हम्म लेकिन हम्म यही हम अक्रूड जो है हम किसी इन्वायरमेंट के जगह पे यूज नहीं कर सकते जहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हो कि इस जंगल में बहुत ज्यादा जानवर इकट्ठे हैं, तो हम वहाँ पे क्रूड वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके हम्म। कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होगा। तो ये चीजें बस हमें करनी है और हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टेक्निक्स हैं। मैं कल किसी का सुन रहा था तो वो कह रहा था E2 है, मेरे ख्याल है चैनल है कि उनका एक वो रील थी। वो कह रहे थे कि अगर कोई नेटिव स्पीकर भी हो ना, उसे भी बगैर तैयारी के वो भी आइल्स को अच्छे तरीके से पास नहीं कर सकता। ये सब टेक्निक्स होती हैं इसकी, टिप्स एंड ट्रैक्स, हम्म ये बस ये यूज होते हैं। बगैर तैयारी के वो भी नहीं पास कर सकता इसको अच्छे से। हम्म। तो बस यही चीजें हमें देखनी होती हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ वो एक कुछ हमारे पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज में हमें बता रहे होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे होते हैं। वो तो कहते हैं 3 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से जिस लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं 3 दिन, अगर कोई तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो तो जिसे पता है कि वहाँ पे सारा कुछ था ही इंग्लिश में, स्पीकिंग भी लिसनिंग भी सारा कुछ, वो तो कर सकता है। हम जो जहाँ पे सिर्फ हमारी बुक्स और स्लाइड्स इंग्लिश में थी, बाकी सारा कुछ हमने लेक्चर भी उर्दू में लिए हैं, और बोले भी उर्दू ही हैं, सिर्फ लिखना इंग्लिश में होता था। तो वहां पे जरा ये मुश्किल हो जाता है कि 3 दिन में हम तैयारी कर लें। ऊपर से इंडियन यूट्यूबर्स। यस एग्जैक्टली। तो इस वजह से बस, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। जी जी बिल्कुल। स्लैक पे कोई भी किसी वाले से क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जी जी। अच्छा, लिसनिंग में वो किस तरह से हमको एग्जामिन कर रहे होते हैं कि वो कोई कॉन्टेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, ऑडियो हमें सुनाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, इस तरह से होगा? जी 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 एग्जैक्टली। वो ऑडियो ही हमें देते हैं, ऑडियो से ही हमने बस उन्हें जो आंसर होने हैं हमने शीट पे वही लिखते जाने हैं, बस जो सामने में ओ, स्क्रीन शो हो रही होगी। और जैसे वो कल कल मैं आईडीपी का ले रहा था ना, तो वो दो बंदों के दरमियान कॉन्वर्सेशन थी और जी उसमें जी से कुछ जो एमसीक्यूज थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन लिसनिंग और रीडिंग, इन हम्म। दोनों में ना जो यूज होता है ना वो सिर्फ सिनोनियम यूज होते हैं। ओके। आपको एग्जैक्ट वर्ड कहीं पे भी जवाब वाला नहीं मिलेगा। है। ठीक है, सब में वो सिनोनियम ही यूज करते हैं। और इसीलिए मैं वो आपको बता रहा था कि आप वो सिर्फ गो थ्रू कर लें, वो जो 1000 वर्ड है, तो उससे ना आपके बिल्कुल। सुनोनियम एक दफा नजर से गुजरे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने, अगर मेरा ये वर्ड आ गया तो ये मैंने इसका सिनोनियम ये वाला कहीं पढ़ा था। तो वो जो दोनों सिनोनियम जब हमारे माइंड में आ जाएंगे ना, हम देख लेंगे तो हमें आसानी से जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है। और रीडिंग में हमें वो कुछ अंक कुछ पैराग्राफ देंगे, वो हमने रीड करना है, तो वो हमें कैसे एग्जामिन करेंगे? जी एग्जैक्टली, ये जो मैंने आपको दिखाया है पैराग्राफ, ये ब्रिटिश नहीं। काउंसिल से ही उठाया हुआ है, ये रीडिंग का ही है। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने यहाँ पे ये नहीं। पैराग्राफ दिया है ना, हम्म। तो इसमें से वो कोई क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो वो इसके सिनोनियम इन वर्ड के यूज कर रहे होंगे। इस अगर अगर वो जवाब यहाँ पे है तो यहाँ के उन्होंने सिनोनियम यूज किए होंगे। तो हमने बस वो जवाब वहां पे लिखना है कि ये सिनोनियम इसका बनता है, तो हम ये लिख देते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, जैसे ये वर्ड है ना, फर्ज करें इस चंक में ही वर्ड है, जवाब है, ये इसका एबिलिटी टू परसीव, को उसको समझने की या देखने की जो सलाहियत है, उसको वहां पे उन्होंने रिफ्रेज करके जवाब में लिखा होगा कि क्वेश्चन में, और लिखा होगा कि ये बताएं कि ये जो बायोलॉजिकल फिनोमिनन है ये क्या है, ये कैसे कैसे सेंस करता है ओवरऑल। तो वो बस रिफ्रेज किया होगा, वहां से रिफ्रेज, और इसको हमने बस मिलाना है और जवाब मिल जाना है। ठीक है। रीडिंग और राइटिंग में हमने एक पैराग्राफ लिखना होता है। राइटिंग में सिर्फ एक ही पैराग्राफ हमने लिखना होता है? नहीं, एक उन्होंने डायग्राम दी होगी, या उन्होंने आपको ग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ दी होंगी साथ परसेंटेज या नंबर दिए होंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल दिया उसके, होगा। जी जी उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है ठीक कि है। इसको रिपोर्ट कैसे करना है। वो एक, जैसे बिजनेस वे में हम स्लाइड्स को रिपोर्ट करते हैं ना, वो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक ठीक है, है। और जो दूसरा होता है वो एक ओपिनियन या आपका डिसएडवांटेज एडवांटेज का पैराग्राफ होते हैं। 250 वर्ड लिखने होते हैं बस। दो होते हैं ये, इसमें दो पार्ट्स होते हैं? जी जी 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, समझ गया। जो फर्स्ट टास्क होता है जिसमें ग्राफ या कोई डाटा दिया होता है, वो आसान होता है, उसमें 150 वर्ड लिखने होते हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन कोई 50 to 80 वर्ड तो हमें उनसे ही मिल जाते हैं जो उन्होंने दिए होते हैं। बस उनको उनको रिफ्रेज करना होता है। मैं समझ गया। जी टेक्टिक्स।
बस एक एक वीक हर एक को देंगे ना लगातार, तो आपकी सबकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप एक वीक लिसनिंग को दे रहे हैं तो बाकी तीनों को भूल जाएंगे, सिर्फ लिसनिंग करें। पर नेक्स्ट वीक अगर आप रीडिंग को दे रहे हैं तो बाकी तीनों को भूल जाएं। इस और तरह बाकी हर मैंने वीक। वो नेक्स्ट में मंडे से आई थिंक हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैं इवन सॉरी 5 बजे वाला सेशन जो है ना उसमें मॉडरेटर रहेगा, मॉडरेटर जो है ना वो ऐड हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। यस। वहाँ पे बस यही साथ हेल्प करनी होती है। हम्म। इट इज गुड कि आप एक पहले में मॉडरेट करें, नेक्स्ट आप हो सकता है बीच में कोई ट्रेनर हट जाए तो आप उसको एज अ ट्रेनर भी लीड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 1-2 मंथ में 1-2 हफ्तों में मैंने रेडी हो जाना है फॉर ट्रेनिंग। जी जी एग्जैक्टली, ठीक है, अच्छी बात है। जी।